Hello students and welcome back again to our video tutorial. And today in this lecture we are going to discuss about the regulation of breathing in humans. Yesterday in our Zoom class we have discussed about the transportation of carbon dioxide, and earlier on we have discussed about transportation of oxygen. So the topic transportation of gases is completed, and this is the last lecture of this chapter. And in today's lecture we are going to cover two topics. First, I will be telling you about the regulation of breathing, how our breathing is regulated in different conditions, and in second part of lecture, I am going to discuss about certain disorders which has been associated with respiratory system. So, starting with the regulation of breathing, see, breathing is an involuntary process, but it could be regulated, or it is actually regulated by certain centers which are located in my central nervous system, and certain receptors are present in the periphery of my body. We will be discussing about them. Breathing can be controlled by voluntary actions as well. If I ask you to take a deep breath, you can do this thing. So you better know that muscle of inspiration, that is your diaphragm, that's a voluntary muscle, right? If I ask you to take a deep, to exhale deeply, again it could be controlled voluntary as well. So starting with the basic concept, the rate of breathing, normal rate of breathing, different books gives us different data. Some says it is 12 to 14 times per minute. अदर सेज इट इज 14 to 18 टाइम्स पर मिनट. पर जब हम टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको बताया 14 to 18 ही होगा, पर वैल्यू 12 to 16 के हिसाब से निकाला होगा. तो स्टैंडर्ड इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट इन एडल्ट, और ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट इज दैट मच. व्हाइल इन केस ऑफ न्यूबॉर्न they are having a higher breathing rate, or it is about 44 times per minute, right? In breathing there are two processes. One is inspiration, which normally lasts for 2 seconds. Inspiration lasts for 2 seconds, and expiration on the other hand lasts for 3 seconds. So in a complete breath, in order to inspire and expire, we takes about 5 seconds. So that 60 divided by 5 comes 12. Now let us discuss about the centers which can control our breathing, or by which our breathing is initiated voluntarily or involuntarily. And there are two types of respiratory center. When we talk about respiratory centers, we call that the respiratory centers are located in medulla oblongata, and pons feruli. Let me clear one thing as well. I will be teaching you about neural regulation as well as chemical regulation. So first we are discussing about neural regulation, when certain neurons are stimulated, how our breathing is controlled. So the center, respiratory rhythm center or respiratory center of neural regulation are located in medulla oblongata and pons feruli. In medulla oblongata, the center are simply referred as to respiratory rhythm center, and these are the centers which maintain the rhythm of my breathing, which maintains the rhythm of my breathing. So let's call them respiratory rhythm center. The centers which are present in pons are commonly known as pontine center, and pontine center is also a group of nerves which actually stimulate my muscles of breathing, either the inspiratory muscles or expiratory muscles. And there are two major pontine centers. One would be pneumotaxic center, and other would be apneustic center. So in pons feruli,
a group of neuron which is known as mnemotaxic center, and other group of neuron which is known as apneustic center is present. While in medulla oblongata, there are two centers which has been located, and just to make things easier for you, authors has named them as dorsal respiratory rhythm center and ventral respiratory rhythm center. So first I will be teaching you the function of dorsal respiratory rhythm center, then we will be talking about ventral respiratory rhythm center, and then we will be discussing about mnemotaxic center and apneustic center. That would be the neuroregulation. Then we will be switching on the chemical regulation, how the concentration of certain chemicals can alter my breathing pattern. Done? Alright, so just let me make a diagram here. Let me explain these things by making a diagram, and some part of brain, I am not going to make any neuron or anything else, I am just trying to make the brain stem, and in the brain stem this area is pons feruli, and next to pons feruli is medulla oblongata. So there would be certain center which we are calling pontine center, and other center which we are calling medulla oblongata center or respiratory rhythm center. This area is dorsal side and this area is ventral side. So there is a group of neurons which are located dorsally. What should be the name? Dorsal respiratory rhythm center. And there is other group of neurons which are located ventrally. We call them ventral respiratory rhythm center. Now, this here is your diaphragm. Let's say these are your diaphragmic muscles. And you better know that diaphragm muscle are the major muscle of inspiration. This diaphragm contract, and due to this contraction you are able to inhale anything, because your intrapulmonary pressure goes down as there is an increase in intrapulmonary volume. This here is, let's say, sternum. This here is vertebral column. There are certain structures, bony structure which are present like this, and these bony structures are ribs, and between these ribs there are two types of muscles. There are certain muscles which are located superficially. We call them external intercostal muscle. Let's say in green I am showing external intercostal muscle, and in black I am showing you internal intercostal muscle, right? Exactly, external intercostal are located outside and internal are located inside. Okay, so one by one let me explain the functions of these two centers first, and then I will be coming on mnemotaxic center. And please pay attention, that is very simple and quite interesting. So first, the dorsal respiratory rhythm center, or let's call it DRS, dorsal respiratory center. Dorsal respiratory center is also known as inspiratory center. And why we call them inspiratory center? Because the nerves which has been arising from there, it only innervates with those muscles which are involved in inspiration. See, for diaphragm we use the term pharynx, and this nerve is pharynx nerve, and these muscles are pharynx muscles. So when these neurons are activated, they send a signal for the contraction of diaphragm, as well as what are these muscles? External intercostal muscles, and these muscles are internal intercostal muscles. So they would be sending a signal to external intercostal muscle as well as to diaphragm for contraction. So I can say when a signal arises from dorsal respiratory rhythm center, there is contraction of diaphragm and there is contraction of external intercostal muscle, which we call inspiration. So dorsal respiratory center is known as inspiratory center because it only controls inspiration.
or the nerves which has been originating from this center are the inspiratory nerves. They result in the contraction of those muscles which are controlling inspiration. You got my point? Whereas the center which is located here, VRS, ventral respiratory center, ventral respiratory center actually contains the nerves which can innervate both process, which can control both process, and they got the nerves of inspiration as well as the center got the nerve of expiration as well. So they have nerves for inspiration as well as expiration. Depending upon which nerves are initiated, they would be performing their function. Depending upon which nerves are initiated, they would be performing their function. If I talk about inspiration, see the nerves which has been arising from respiratory rhythm center during inspiration, it would be following the same pathway and it would be helping external it would be making external intercostal and diaphragm to contract during inspiration. So I am not going to discuss about inspiration here. I am going to discuss about the function of this center during expiration, and there are two expiration. One is normal expiration and second is forceful expiration. During normal expiration, what happens? See, normal expiration is a passive process, and during normal expiration there is no contraction of any muscle. Those muscles actually relax which were being contracted during inspiration. So during normal expiration, as it is a passive process, these centers are switched off. These centers are switched off. So ventral respiratory center do not work during normal expiration. They work during normal inspiration, no worry. The signals are coming from dorsal as well as ventral, no issue, depending upon if their nerves are activated. But during forceful expiration, these centers send a signal to these muscles. And what are these muscles? Internal intercostal muscle. And you have learned that internal intercostal muscle contract during forceful expiration. So during forceful expiration, they send signal to which muscle? To internal intercostal muscle. Right? What is this area here? Pons, varoli. See, pons का literally meaning होता है bridge, जो nervous system में कभी पढ़ोगे, and that is your medulla oblongata. ठीक है बेटा? अब मैंने क्या बताया अब तक आपको कि जो मेरे ब्रीदिंग के सेंटर्स हैं वो मेरे मेडुला और पोन्स में है, न्यूरल सेंटर, और जब मैं कीमो रिसेप्टर्स की बात करूंगा उनको भी हम डिस्कस करेंगे. मेडुला के अंदर दो तरह के सेंटर होते हैं. जस्ट लुक मी हियर, देयर आर सर्टेन सेंटर विच आर लोकेटेड लेटरली, लोकेटेड वेंट्रली, एंड देयर अदर्स विच आर लोकेटेड डोर्सली. जो डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो सिर्फ इंस्पिरेशन कंट्रोल करता है, और वो कंट्रोल करता है डायफ्राम और एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल. आप याद रखना, नॉर्मल इंस्पिरेशन में डायफ्राम एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फोर्सफुल इंस्पिरेशन में इन दो मसल के साथ वो दो मसल कंट्रोल कर कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्कैलिन मसल एंड स्टर्नोक्लेविकोमेस्ट्रॉइड मसल. ठीक है, तो चार मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है फोर्सफुल इंस्पिरेशन में. तो जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो दिस सेंटर इज वर्किंग depending upon either these nerves are activated or not. If these nerves are activated, they will also make these muscles to contract. During normal expiration, these centers are switched off. The expiratory regions are switched off because no muscle need to contract. The expiratory nerves of this center get activated during forceful expiration, and they actually initiate the contraction of internal intercostal muscle. एब्डोमिनल मसल के हम अभी जिक्र नहीं करते वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. सो डिड आई मेक ए वेरी क्लियर पॉइंट हियर? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ centers present in medulla oblongata. Which center? Respiratory rhythm center. Let's call that respiratory center. The dorsal one and the ventral one. ठीक है बच्चों.
नेक्स्ट, अब बात करते हैं पोंटाइन सेंटर का, कि सर जब ये डायग्राम बना ही रखा है तो पोन्स भी हमें नजर ही आ रहा है, बस जरूरत है तो किसकी, हमें कुछ पोंटाइन सेंटर भी बना के दिखा दीजिए आप। ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट पोंटाइन सेंटर हियर। पोन्स वेरोलाई के अंदर दो सेंटर्स मिलेंगे बच्चों, तो लेट अस डिस्कस देम। इसी डायग्राम में हम पढ़ लेंगे। इन पोन्स वेरोलाई देयर इज अ सेंटर विच वी कॉल नीमोटैक्सिक सेंटर, और जो नीमोटैक्सिक सेंटर है वो प्रेजेंट होता है डोर्सल पार्ट ऑफ अपर पोन्स। नीमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड in the dorsal side of upper pons here. So this here is pneumotaxic, and see what pneumotaxic center do. Pneumotaxic center is switch off point for inspiration. So it send a signal to inspiratory area, and which are the major inspiratory area? Dorsal rhythm center, and it mainly switch it off. तो नीमोटैक्सिक सेंटर को हम बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन। वो इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन और स्टिमुलेट करता है एक्सपिरेशन। तो नीमोटैक्सिक सेंटर इज आल्सो नोन एज स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन, दैट इज आई कैन से it limits inspiration, that is I can say it limits inspiration and stimulate expiration। ठीक है, तो अगर नीमोटैक्सिक सेंटर के बारे में पूछा जाए कि भाई हमारे ब्रेन में स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन क्या है, तो आप आंसर करेंगे नीमोटैक्सिक सेंटर। और इंस्पिरेशन को टर्मिनेट करके इन मसल्स को, इन न्यूरॉन्स को ब्लॉक करके, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करके वो इनिशिएट करता है एक्सपिरेशन। ठीक है बच्चे, अब ये जो सिग्नल है टू ब्लॉक द इंस्पिरेशन, ये दो तरह का हो सकता है। इट कुड बी ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल और इट कुड बी ए वीक सिग्नल। इफ द सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग, if the signal is strong, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा। नॉर्मल इंस्पिरेशन 2 सेकेंड्स। अब इंस्पिरेशन कितने वक्त के लिए होगा? इंस्पिरेशन लास्ट फॉर 0.5 सेकेंड ओनली। और अगर इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम हो गया है तो लंग्स कंप्लीटली फिल हो पाएंगे, पार्शियली फिल हो पाएंगे? तो आप आंसर देंगे कि सर ये पार्शियली फिल हो पाएंगे, विच रिजल्ट इन पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स। सर इफ द सिग्नल फ्रॉम नीमोटैक्सिक सेंटर अपॉन dorsal respiratory center is very strong, the inspiration would be lasting for 0.5 second only and lungs would be partially filled with air, right? Partial filling of lungs. Case number 2, if signal is weak, then what would happen? सिग्नल वीक, देखो सिग्नल नॉर्मल आया, मॉडरेट आया तो 2 सेकेंड का है। सिग्नल और वीक हो गया तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, सिग्नल स्ट्रांग हो गया तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं नीमोटैक्सिक सेंटर भी काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो उसका मॉडरेट सिग्नल में इंस्पिरेशन को 2 सेकेंड का किए हुए। तो इफ द सिग्नल इज वीक, इंस्पिरेशन लास्ट फॉर 5 सेकेंड, इंस्पिरेशन लास्ट फॉर 5 seconds, last for 5 seconds, and there would be partial filling of lungs or complete filling of lungs. Now there would be complete filling of lungs, which result in complete filling of lungs.
सो पोन्स विजुलाई के अंदर पहला सेंटर जिसको बोला न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमो वर्ड तो सर हमने ना पल्मोन पढ़ा था, और सर निमोनिया हम तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड या लंग्स रिलेटेड ही कंडीशन पढ़ते हैं। आंसर यस। मेनली ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये इंस्पिरेशन को लिमिट करता है, इंस्पिरेशन को स्टॉप कर देता है। तो हमने स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन भी पढ़ लिया है। और कौन से सेंटर को स्टॉप करता है? आंसर इज मेनली मेजर इंस्पिरेटरी सेंटर डोर्सल वाले ही हैं। ठीक है, प्लीज डोंट थिंक अबाउट वेंट्रल राइट नाउ। वेंट्रल आर मेनली एक्टिवेटेड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, अदरवाइज उनके पास दोनों तरफ के नर्व्स हैं, अगर वो एक्टिवेट है तो उनको भी ये इनहिबिट कर देगा। तो आई एम वेरी फोकस्ड ऑन द डोर्सल एरिया। अब अगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग आया, मॉडरेट अभी आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग हो गया तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा और पार्शियल फिलिंग होगा। और सिग्नल अगर स्ट्रॉन्ग आ गया तो ड्यूरेशन, सिग्नल अगर स्ट्रॉन्ग आ गया तो ड्यूरेशन कम, पार्शियल फिलिंग। और सिग्नल अगर वीक हो गया तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा एंड कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स होगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, लोअर पार्ट ऑफ पोन्स विजुलाई समवेयर हियर। देयर इज अनदर सेंटर जिसको हाइपोथेटिकल सेंटर भी कहते हैं, एपन्यूस्टिक सेंटर। और कई सालों तक तो पता ही नहीं था लोगों को, लाइक रिसर्चर्स को, कि करता क्या है। कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है और इसका एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता था, तो उसको हाइपोथेटिकल सेंटर कह दिया था। बाद में पता चला कि ये जो सेंटर है इट सेंड अ सिग्नल टू डोर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एंड दिस सिग्नल इज excitatory signal. So later on they come to know that it actually stimulate inspiration. It actually stimulate inspiration. So पोन्स विजुलाई में न्यूमोटैक्सिक सेंटर जिसको स्विच ऑफ पॉइंट कहते हैं, और दूसरा होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर, और एपन्यूस्टिक सेंटर मेनली स्टिमुलेट्स इंस्पिरेशन। मैं फिर बता दूं कि इसको अब तक हाइपोथेटिकल ही माना जाता था, एग्जैक्ट फंक्शन इसका नहीं पता था, बट नाउ वी नो इट वेरी वेल दैट इट स्टिमुलेट इंस्पिरेशन। हाउ इट स्टिमुलेट इंस्पिरेशन? बाय एक्टिवेटिंग द डोर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। तो बच्चे ये हो गया आपका अबाउट द न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। तो एक बहुत ही क्विक रिवीजन, न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग सेंटर दो जगह होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं और पोन्स विजुलाई में होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में डोर्सल साइड भी होते हैं, वेंट्रल साइड भी होते हैं। जो डोर्सल साइड है वो सिर्फ इंस्पिरेशन कंट्रोल करता है, माने डायफ्राम हो, एक्सो इंटरकोस्टल। और वेंट्रल साइड में दोनों तरह की नर्व्स होती हैं, इंस्पिरेशन की और एक्सपिरेशन की, और डिपेंडिंग जो एक्टिवेट हुई वो काम करना शुरू कर देती है। अगर मैं एक्सपिरेशन का केस वहाँ डिस्कस करूँ तो नॉर्मल एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, इट्स मेन इनएक्टिव, और वो एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। फिर आपने पढ़ा कि भाई पोन्टाइन सेंटर इज योर न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर, एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल, एंड एपन्यूस्टिक सेंटर आर द वन व्हिच स्टिमुलेट इंस्पिरेशन। ठीक है बच्चे। अब दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। दूसरा जो पार्ट है इसका रेगुलेशन का, वो मैं बताने वाला हूं, केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। हाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल, what is wrong with me today? How due to the presence of certain chemicals the rate of my breathing increases and depth of my breathing increases. For let's say if I am having a lot of carbon dioxide in my blood, what my body would try to do? It would try to exhale a lot of carbon dioxide, and in turn my body would try to inhale a lot of oxygen. So my breathing rate would get faster, and even the depth of my breathing would increase. So if there is more carbon dioxide, obviously there would be more hydrogen ion. You know that deoxygenated blood is quite acidic, slightly acidic, let's say, and acidosis, excess of carbon dioxide can cause acidosis, acidic blood. So I will be telling you if the blood pH goes down, acidity goes up, H plus ion concentration goes up, carbon dioxide is increasing, how my body would be trying to throw out that carbon dioxide, and how my body take a lot of oxygen, right? Chemical regulation. There would be certain central receptors which are present in the medulla oblongata, and certain peripheral receptors which are present in the carotid arc and aortic arc.
तो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज दैट कैरोटिड आर्क एंड एओर्टिक आर्क एज वेल. ठीक है बच्चे, just give me 1 minute, let me clear it up and then let us talk about chemical regulation of breathing. I guess up to here we are very clear. In chemical control of breathing, the chemical centers, see this, I'm just taking this diagram for now. I'm just keeping it right because I need to mention the chemoreceptor which are present in medulla oblongata as well here. So chemical control of breathing, chemical control of breathing or chemical regulation of breathing, I must say chemical regulation of breathing, right? Now in chemical regulation of breathing there are two types of receptors which can sense the chemical nature, which can taste the chemical nature of my blood, and there are certain central chemoreceptor and other are peripheral chemoreceptor. These central chemoreceptors are present in ventral part of medulla oblongata, and that central chemoreceptor is different from the medullary respiratory center. ठीक है, so let's say this is central receptor, central chemoreceptor here. Okay, so their location is ventral in medulla, different from respiratory rhythm center, and majority of them are present in carotid arc, and a seizable amount, a few amount is present in aortic arc. तो पहले तो ये बता देता हूँ व्हाट आर दीज कैरोटिड आर्क एंड व्हाट इज दैट एओर्टिक आर्क. पहले ही पेरिफेरल रिसेप्टर बता देता हूँ. सेंट्रल रिसेप्टर तो अगर आपको अभी समझ में आ गए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं आए होंगे तो थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स से मैं शुरू करता हूँ कि मेरा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दिस एरिया इज माई लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये अराइज होगा दैट वुड बी योर सिस्टमिक आर्क, राइट? एंड वी ह्यूमंस आर हैविंग लेफ्ट सिस्टमिक आर्क. तो सिस्टमिक आर्क के लिए वर्ड यूज करते हैं एओर्टिक आर्क. सी बच्चे, आज जब हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, टू बी एग्जैक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन वो है जो अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है. ठीक है, वो अवे फ्रॉम द हार्ट, इट कुड बी इट इज मेनली अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट लंग्स जो होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है. तो हम जब नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा सिस्टमिक का पार्ट है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पूरा पल्मोनरी का पार्ट है. खैर सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे तो मैं पूरा का पूरा बताऊंगा ये आपको कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है. तो जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, दिस हेयर, दिस एरिया हेयर इन द एओर्टा is referred as to aortic arc, and there are certain chemoreceptors which are present here, and they are always testing the nature of your blood. How much carbon dioxide is there, how is the acidity, how much H plus ion is there, right? All right, then let's say I am taking it away. There is a pathway which is taking blood to my brain, and those arteries which take blood to my brain is referred as to carotid artery. These arteries are carotid artery, special arteries, right? And just before the brain they actually divide into left carotid and right carotid, और जहाँ पे बाइफर्केशन होता है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी का, यहाँ पर होते हैं खूब सारे कीमोरिसेप्टर, राइट? So there are certain chemoreceptors which are present near to the brain in the bifurcation of carotid artery. इनको बोलते हैं carotid receptors. Majority of them are present there. इस bifurcation को बोलते हैं carotid arc, और इस एरिया को बोला मैंने aortic arc. So a lot of receptors are present in carotid arc and certain receptors are present in aortic arc. अब ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है बच्चों, क्या करते हैं?
ये हमेशा मेरे ब्लड को टेस्ट करते रहते हैं, आपके को भी करते होंगे, और ये इंश्योर करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mm of Hg है, ब्लड का pH 7.4 है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स्ड है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या टेंशन, अगर जब मैं टेंशन की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्शियल प्रेशर, टेंशन ऑफ ऑक्सीजन, टेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेंशन ऑफ H+ आयन, वो एकदम नॉर्मल है। और जब भी टेंशन चेंज होती है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टू थिंग, वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इज concentration of H+ ion. They are not actually sensitive to oxygen. अभी याद रखें आप, they are not very much sensitive to oxygen, पर partial pressure of carbon dioxide बढ़ रहा है तो समझ में आता है ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, ठीक है। So these receptors are sensitive. These receptors are sensitive to increase in partial pressure of carbon dioxide and H+ ion. माने जब भी कभी ब्लड एसिडिक होना शुरू हो जाता है, आपने पढ़ भी लिया है कि भाई स्लाइटली एसिडिक होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड देन ऑक्सीडेटेड ब्लड, तो जब भी कभी H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, माने खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आज तुमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा भी, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुआ है तो लॉट ऑफ H+ आयंस हैज बीन रिलीज्ड एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर कमिंग, इवन हीमोग्लोबिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट स्लाइट H+ आयंस आर लेफ्ट फ्री इफ दे आर नॉट काउंटर बैलेंस्ड। उसी कंडीशन में आपका H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इफ योर ब्लड इज गेटिंग एसिडिक, योर H+ आयंस आर इंक्रीजिंग एंड योर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, they actually sense the sensitivity whenever there is a increase in partial pressure of carbon dioxide and concentration of H+ ion and fall in pH. When I say fall in pH, I simply say rise in the H+ ion concentration. तो with the help of certain nerves, let's say cranial nerve का जिक्र करूंगा मैं यहाँ से जो cranial nerve जाती है उसका नाम होता है cranial nerve number 10 और नंबर 10 इज वेगस नर्व। वेगस नर्व, और यहां से जो नर्व लेके जा रही है सिग्नल जो इन रिसेप्टर से अटैच है, दैट इज नंबर 9। 9 इज ग्लोसोफेरेंजियल। आयुष पे अटेंशन, तुम लिख कुछ और ही लेते हो बेटा। आई मेड ए रिचेक विद दैट स्टूडेंट एंड शी रोट 9, राइट। सो ग्लोसोफेरेंजियल इज नंबर 9, glossopharyngeal is number 9 and vagus is number 10, and these nerves are taking the signal to central chemoreceptor in ventral medulla, and when signal goes to central chemoreceptor, they actually stimulate, will send a signal to respiratory center, and these respiratory center can enhance, after being activated they can enhance, they increase the rate and depth of breathing. So whenever breathing, right, there is a rise in partial pressure of carbon dioxide, rise in H+ ion concentration, my blood is getting acidic, so my breathing rate and depth increases. If I am taking a deep breath inside, I am taking a lot of oxygen, and when a lot of oxygen goes in alveoli, Haldane effect occur. And what is Haldane effect? Unloading of carbon dioxide occur. I am throwing out a lot of carbon dioxide here, and this is how these receptors keep on sensing and keep on sending the signal until or unless the normal concentration has been regained. Is that clear? One thing to remember, that these chemoreceptors are insignificantly sensitive to oxygen. और आप क्लास 11, 12 और नीट के लेवल तक याद रखेंगे, they are not sensitive to oxygen. They are actually they are insignificantly सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, बट आप प्लीज याद रखो कि दे आर ओनली एंड ओनली सेंसिटिव टू अ राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन. They are not sensitive to
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अदरवाइज कंडीशन तो बन रही है कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है। बोर इफेक्ट तो पढ़ा था ना आपने, एज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, a lot of oxygen would be unloading, they would be shift towards right, so blood would be carrying normally less oxygen and more carbon dioxide. तो बच्चे ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कि भाई रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग न्यूजली एज वेल एज केमिकली दोनों से कंट्रोल होता है। केमिकल कंट्रोल भी आपका इवेंचुअली न्यूरल कंट्रोल से सपोर्ट होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी विल बी टॉकिंग अबाउट COPD फर्स्ट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसमें आ जाएगा एस्थमा, उसमें आएगा आपका एम्फिसीमा और उसमें आएगा आपका ब्रोंकियाइटिस। फिर थोड़े ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बता दूंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूंगा पहले जो रिलेटेड है विद द नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, डिक्रीज ब्रीदिंग, इंक्रीज ब्रीदिंग एंड ऑल द थिंग्स। और फिर माउंटेन सिकनेस डिस्कस कर लेंगे, वैसे बता चुका हूँ पहले। देन मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड आपका डिस्कस ही कर लिया था। तो कुछ डिसऑर्डर्स हो, राइट। लेट अस टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम नाउ। आई एम क्लियरिंग इट अप। वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग हियर। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, and I have to go to your vitamin lecture as well. I remember that. So just keep patience. It would be uploaded like on Sunday. You will get that. And for other student, you are having a lecture pending. That is your physiology of digestion. I will be recording that as well. Don't worry. Actually, my camera got disturbed. That's why there was no recording today. Okay, let me rub it up. So terminology. And then certain disorders, right? So terminology related to breathing. And what terminology are related to breathing? जो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है बच्चों, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं यूपनिया। इज नॉर्मल ब्रीदिंग, जो भी आपका 12 to 16 है। अगर पेशेंट का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरपनिया और टैकीपनिया। जो टैकी वर्ड है वो इंक्रीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है, लाइक हाइपर, दैट इज इंक्रीज्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर पेशेंट का ब्रीदिंग रेट कम हो गया है तो वर्ड यूज करेंगे हाइपोपनिया, और तो जो पिनिया वर्ड है वो ब्रीदिंग के लिए है, ये भी समझ में आ रहा होगा अब तक, और ब्रेडिपनिया, राइट, डिक्रीज्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। अगर एपनिया हो गया तो ऑलमोस्ट देयर इज नो ब्रीदिंग, राइट। फिर एक होता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया, ऑर्थो का मतलब यहां पर होता है लाइक स्लो ब्रीदिंग ही होगा। डिफिकल्ट, पेशेंट इज हैविंग अ स्लोअर रेट ऑफ ब्रीदिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जब वो लेटा हुआ है। अगर वो खड़ा हुआ है तो उसका, देखो ये जो प्रॉब्लम होती है वो मेनली हार्ट रिलेटेड पेशेंट को होती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो लेट कर आपके खूब सा जो ब्लड है वो आना शुरू हो जाता है एंड दैट वुड बी इवेंचुअली गोइंग टू हार्ट एंड गोइंग टू द लंग्स। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द एल्यूलर सिस्टम रिजल्ट इन दैट पेन एक्चुअली। और अगर आप खड़े हो गए तो ओबियसली थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा लंग से ब्लड आने वाले का, उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो पेशेंट को अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ब्रीथ लेते हुए दिक्कत हो रही है उसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ठीक है। ऑर्थोपनिया इज पेनफुल ब्रीदिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ड्यूरिंग
हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है बच्चे। डिस्पनिया का मतलब होता है अगर आपको पेनफुल ब्रीदिंग हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग XYZ किसी भी कंडीशन में हो रही है, तो डिस्पनिया, पहले भी कहीं लेक्चर में इसका जिक्र किया है मैंने, अगर आपको याद आ रहा हो तो, दैट इज एक्चुअली पेनफुल ब्रीदिंग or difficulty in breathing in any situation, it could be due to pleurisy as well। ठीक है। फिर बच्चे एक टर्म आता है आपका हाइपोक्सिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और हाइपर कैप्निया का मतलब होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, हाई और इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन आवर ब्लड। और एक जो वर्ड है जो आपको याद रखना है, एस्फाइजिया, एस्फाइजिया और एस्फाइजिएशन कहते हैं दम घुट जाने को। तो एस्फाइजिया वो कंडीशन होती है जब आपको हाइपोक्सिया के साथ साथ हाइपर कैप्निया हो गया है। तो हाइपोक्सिया या हाइपर कैप्निया एक साथ हो गया तो एस्फाइजिया हो जाता है। ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा तो हाइपोकैप्निया कह देंगे उसको। चलो वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक वर्ड होता है नार्कोसिस, और नार्कोसिस का मतलब होता है डिप्रेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी सेंटर। डिप्रेशन, आई थिंक विच कैन डिप्रेस माई CNS is narcosis, is a narcotic substance. Depression in central nervous system including respiratory system, right? Respiratory centers। तो बच्चों ये कुछ ना टर्मिनोलॉजी है जो आपको ब्रीदिंग के या रेस्पिरेशन के रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है। फिर एक वर्ड होता है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है अगर आपका जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो गया टिश्यूज तक, और उस डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से टिश्यू का जो कलरेशन है वो ब्लूइश होना शुरू हो गया है, उस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस। सो ड्यू टू डिक्रीज्ड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज दे स्टार्ट टर्निंग ब्लू। उसमें हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे। स्टार्ट्स टर्निंग ब्लू एक ब्रॉड टर्म है एक्चुअली। अब कोई डाउट ही पूछा था शायद, ये मैं देखा था अभी शाम। एक होता है मैथ हीमोग्लोबिन, यह ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ Fe+3 इन हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। जनरली अगर आपके पानी के अंदर ज़्यादा नाइट्रेट्स हैं, आप ऐसा कोई खाना खा रहे हैं या ऐसी कोई सब्जी खा रहे हैं या ऐसा कोई भी आप जो है प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा पानी यूज़ कर रहे हैं जिसमें नाइट्रेट ज़्यादा था, नाइट्रेट एलिमेंट्री कैनाल में जाके कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में। नाइट्रेट इन वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्राइट इन एलिमेंट्री कैनाल, और ब्लड के अंदर नाइट्राइट की फॉर्म में जाता है, राइट, एलिमेंट्री कैनाल, और वो जाके ऑक्सीडाइज कर देता है हमारे हीमोग्लोबिन को, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट, राइट। और उसकी वजह से ब्लूइश कलरेशन हो जाता है। तो जब नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह से ब्लूइश कलरेशन हो जाता है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी डिजीज और ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू नाइट्रेट टॉक्सिसिटी इन वाटर। ठीक है बच्चे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई। अब मैं कुछ डिसऑर्डर डिस्कस कर लेता हूँ। लेट मी डिस्कस सर्टेन डिसऑर्डर्स नाउ। अगर डिसऑर्डर को बताऊँ तो मैं ना इनको 2-3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दूंगा। कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑक्यूपेशनल होते हैं, कुछ आपके ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ आपके ड्यू टू रीलोकेशन हो सकते हैं, एंड कुछ आपके बैक्टीरियल और पैथोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। तो पहले मैं कैटेगरी डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप ना नाम याद रख लेना क्लास 11 तक तो वही काफ़ी है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ही काफ़ी, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो पहले वो पढ़ते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, उनको बोलते हैं COPD, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब 3 मेजर होते हैं। पहला होता है एस्थमा, दूसरा है एम्फीसीमा और तीसरा है ब्रोंकियाइटिस। ठीक है बच्चे, एस्थमा क्या होता है, इसको ब्रोंकियल एस्थमा भी कहते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे इसके बारे में, इट्स ए एलर्जिक रिएक्शन। तो जब भी आप कुछ एलर्जन से एक्सपोज होते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। सो एक्सपोजर टू एलर्जन inflames bronchi and bronchiole। एक सिंपल सा डेफिनेशन तो ये हो गया। इसमें जो नॉर्मल सिम्टम होता है वो वीजिंग होता है, वीजिंग लाइक विस्लिंग विद ब्रीदिंग, और पेशेंट को दिक्कत होती है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। एक्चुअली क्रॉनिक कंडीशन में इंस्पिरेशन में दिक्कत हो रही तो आपको माइट बी ए केस, अगर वीजिंग साउंड आ रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो अभी इतना सीवियर एस्थमा नहीं है, एक्सपिरेशन में ही आना शुरू होता है इन केस ऑफ सीवियरिटी। तो जो इंस्पिरेशन का वो तो महसूस भी नहीं होता मैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एक्चुअली। तो पेनफुल ब्रीदिंग विद वीजिंग ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इज ए क्लासिकल सिम्टम ऑफ एस्थमा। अब होता क्या है मैं बताऊं आपको, मैं नहीं लिख रहा हूं इसलिए बस बता रहा हूं, आप लिख लेना चाहे तो लिख सकते हैं। एस्थमा एक एलर्जी है और एलर्जी में जैसे ही आप एलर्जन से एक्सपोज होते हैं आपकी जो मांस सेल है खूब सा हिस्टामिन रिलीज करना शुरू कर देती है। और हिस्टामिन आपका जो है वो वैसे तो वैसोडाइलेटर होता है, हिस्टामिन का एक इफेक्ट होता है कि वो ब्रोंकियल मसल को जाके कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, पहली चीज़। फिर हिस्टामिन के आने की वजह से खूब सारा फ्लूइड लीक आउट होना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल से, और वो कहाँ पे इकट्ठा होगा, इन द नियर बाई स्पेस ऑफ ब्रोंक्यूल। तो ब्रोंक्यूल के ऊपर उधर से ही प्रेशर आ रहा है, ब्रोंक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। रीज़न बीइंग, एक तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हिस्टामिन की वजह से, और दूसरा जो टिश्यू फ्लूइड है वो बढ़ना शुरू हो गया। आपने पढ़ा है हिस्टामिन इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज, राइट। तीसरा, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की म्यूकस सेल है वो म्यूकस भी बनाना शुरू कर देती है, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो गई है, खूब सारा म्यूकस भी बना रही है और मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। तो पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो वीजिंग होना शुरू हो जाता है। तो जनरली आप क्या करते हैं, आप देखो एंटी हिस्टामिन इतना इफेक्टिव नहीं है यहाँ पर, आप ब्रोंक्योडाइलेटर दे देते हैं। देयर आर सर्टेन ब्रोंक्योडाइलेटर व्हिच हैज़ बीन गिवन, और कहा जाता है कि आप एलर्जन से थोड़ा बच के रहें। ठीक है, एस्थमा के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक कुछ लोग तो कुछ ओपाइन वगैरह जो होते हैं, अफीम वगैरह भी देते हैं पेशेंट को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। मेथामेडॉन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ओपाइन जो दे दिया जाता है, खैर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। देन तुमने पढ़ा भी था शायद वो कि भाई लेट इट बी अभी इतना ही, ठीक है। एम्फीसीमा क्या होता है बच्चे, एम्फीसीमा इज मेनली ड्यू टू डिफेक्टेड स्मोक, और आप इसको याद रखना, ड्यू टू cigarette smoking. So if there is a patient and he is smoking a lot of cigarettes, so for chronic time he is a smoker, it result in the, देखो एम्फीसीमा का दूसरा नाम होता है इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। वो इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स का मतलब होता है बच्चों के एक्सपिरेशन के बाद भी आपके लंग्स फुल ऑफ एयर है। तो एम्फीसीमा ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी in alveolar wall and surface area for exchange of gases, which you call respiratory surface area is decreased.
तो एल्वोलाई के बीच में जितने भी सेप्टा है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द टॉक्सिन प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक। और जो भी आपके इलास्टिक टिश्यू है वो नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेस होना शुरू हो जाता है। तो आपके लंग्स कंप्लीटली खाली, आपके एल्वोलाई कंप्लीटली खाली ही नहीं हो पाते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिडुअल वॉल्यूम राइट नाउ, ये रेजिडुअल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो लंग्स रिमेन फुल ऑफ एयर, पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ऑब्वियसली जो भी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ एयर सब एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है। तो अगर एम्फीसीमा का क्वेश्चन पूछेगा तो देखो वो क्वेश्चन में अगर सिगरेट स्मोक कहीं लिखा है तो आंसर एम्फीसीमा ही करना है, ठीक है। आजकल तो ड्रग वगैरह बन गए हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके, अल्फा एंटीट्रिप्सिन इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा, पर वो अभी नहीं, 12th में कभी पढ़ोगे। और जो ब्रोंकियाइटिस है सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल होता है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। यू आर हैविंग सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू सम वायरस, इट कैन रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी म्यूकस बनाने वाली सेल हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल एंड नंबर भी बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया इन म्यूकस सेल, म्यूकस ज़्यादा बनेगा तो जो भी पाथवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा एंड पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो अगर आप देखो तीनों के अंदर पाथवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, इसलिए उन्हें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा है, ठीक है बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू दोज थिंग्स विच वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन अप टू योर लेवल, ठीक है। सो डोंट थिंक कि हम इतना कम क्यों पढ़ रहे हैं, डोंट थिंक कि इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। जो सेकंड कैटेगरी होगी सीओपीडी के अलावा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। और ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कुछ लेबरर्स हैं जो मेनली आपका माइंस वगैरह में काम कर रहे हैं, दे आर क्रोनिकली एक्सपोज टू सर्टेन टॉक्सिन्स, क्रोनिकली ब्रीद इन कर रहे हैं एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, तो उनके लंग्स के अंदर फिब्रोसिस हो जाता है। फिब्रोसिस का मतलब वही है रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द इलास्टिक टिश्यू बाय नॉन इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स। तो लंग्स के अंदर फिब्रोसिस होगा तो जो भी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। योर लंग्स आर स्पॉन्जी इफ यू डोंट रिमेंबर, राइट, एंड इलास्टिक टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, जो भी ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस बनती हैं, या फिर वो ऐसे माइंस में जहाँ पे खूब सारे टॉक्सिक मेटल्स वगैरह से वो एक्सपोज रहते हैं, that mainly result in fibrosis, right? Or fibrosis result in fibrosis means the loss of elasticity of the lungs. और दो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर आप याद रख लें बस अभी फॉर द टाइम बीइंग। अगर सिलिका से एक्सपोज हुआ है तो सिलिकॉइसिस, इसमें भी फिब्रोसिस हो जाता है, एंड एस्बेस्टोस से अगर एक्सपोज हुए हैं तो एस्बेस्टोसिस। सिलिकॉइसिस एंड एस्बेस्टोसिस आर टू मेजर ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर जो ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई लेबर्स को ज़्यादा वक्त तक एक ही साइट पे काम ना कराया जाए, उनका शिफ्ट होना चाहिए। 2 महीने यहाँ काम किया, 2 महीने ऑफिस से काम कर लो या कुछ और काम कर लो, या जो लेबर्स वगैरह वो मास्क वगैरह प्रोटेक्टिव प्रिवेंशन यूज़ करें, ठीक है बच्चे। फिर एक हमने पढ़ा था एक और वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के लिए, न्यूमोकोइनियोसिस। तो न्यूमोकोइनियोसिस इज आल्सो अ वर्ड फॉर ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो ऐसा कोई टॉक्सिक जो हमारे एल्वोलाई वगैरह को डैमेज करता है वो न्यूमोकोइनियोसिस हो जाएगा। फिर बेटा आते हैं आपके माउंटेन सिकनेस। तो माउंटेन सिकनेस का कंसेप्ट ये है कि जब भी आप कभी एक नॉर्मल आल्टीट्यूड से हाई आल्टीट्यूड की जगह शिफ्ट होते हो तो हाई आल्टीट्यूड पे जाते ही एयर का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो एयर का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो भाई क्या होगा, आप जो भी एयर इनहेल कर रहे हो उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया इसी को कहते हैं। अब बॉडी कैसे जो है वो अडेप्ट करता है, अच्छा ये जो है ना ये आपको ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है 6 से 12 घंटे में। अभी किसी ने प्लान बनाया कि यार चलो बड़ी बर्फ़ पड़ रही है और कहीं दूर चलते हैं रोहतांग पास के आसपास, तो वहाँ पर जो माउंटेन हाइट है दैट इज़ लाइक फ्रॉम द सी लेवल इट इज़ अबाउट 10,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे एरिया में जाके आपको जो शुरू के 6 से 12 घंटे दिक्कत आएगी, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होना शुरू हो जाएगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, आपको लेथर्जी आनी शुरू हो जाएगी,
जो ब्रेन ग्लूकोज है वो कम हो रहा है, वो सारा माउंटेन सिकनेस में आ जाएगा। सो माउंटेन सिकनेस को एक्लेमेटाइज करने के लिए हमारा बॉडी फटाफट खूब सारे आरबीसीज बनाना शुरू कर देता है। आपने देखा भी होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके गाल लाल लाल क्यों होते हैं, दे आर हैविंग हायर नंबर ऑफ आरबीसी देन अस। तो एक तो एक्लेमेटाइज क्या हो, देखो अगर 6 महीने बाद की बात कर रहा है, 6 महीने पहले कोई शिफ्ट हो गया था रोहतांग पास पे, तो अभी उसको माउंटेन सिकनेस नहीं हो रहा होगा, तो बॉडी एक्लेमेटाइज करना शुरू कर देता है। एक्लेमेटाइज कैसे करता है? बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ आरबीसी। एक और चीज़ प्रॉब्लम होती है कि माउंटेन सिकनेस पे जाके, माउंटेन में जाके आपका जो ग्लाइकोलिसिस रेट है आरबीसी का वो बढ़ जाता है। तो जो एफिनिटी है, जो बचा खुचा आपके पास आरबीसी बचा हीमोग्लोबिन है, उसकी एफिनिटी भी ऑक्सीजन से कम हो जाती है। तो रिड्यूस्ड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन with hemoglobin is a problem and low number of RBC is problem. So how our body acclimatize? By making a lot of RBC. Patient would be having problem in respiratory tract, patient would be having problem respiratory tract, patient would be having problem in digestive tract, and patient would be having problem in central nervous system. Digestive tract का mainly जो irritation in the digestive tract, nausea, vomiting बहुत common है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना शुरू हो जाता है, और नर्वस सिस्टम में आपको जो है अगर मैं बात करूँ कि भाई एंजाइटी वगैरह होनी शुरू हो जाती है। एंजाइटी इज़ वेरी कॉमन इन माउंटेन सिकनेस, ठीक है। देन तो ये वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप ना बिना लिखे ही बता दोगे, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। या 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख लो। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ बॉडी एक्लिमेटाइज, और सेकेंड प्रॉब्लम क्या आता है? डिक्रीज्ड affinity of hemoglobin with oxygen due to increased glycolysis, ठीक है। how body acclimatize? body acclimatize by making मोर एंड मोर आरबीसी, ठीक है बच्चे। फिर आपके पास आते हैं कुछ इन्फेक्शियस डिजीज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करो तो निमोनिया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। एक्चुअली निमोनिया आपको क्लास 12th में पढ़ना होता है इन योर हेल्थ एंड डिजीज, तो मैं इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा। पर निमोनिया में क्या होता है, आपके एल्वोलाई जो है वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, ऑडिमा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और फ्लूइड फिल होने की वजह से आपका एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो पाता, तो आपके जो लिप्स हैं दे स्टार्ट टर्निंग ग्रेश टू ब्लूइश। निमोनिया के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगा। फिर एक होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में जो कोराइजा वायरस है वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है, ठीक है। एक्चुअली राइनो वायरस कहते हैं उनको, कोराइजा इज द नेम ऑफ कॉमन कोल्ड। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉमन कोल्ड एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एल्वोलाई इज निमोनिया। ट्यूबरक्यूलोसिस कुड बी देयर, इट्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फिर मैं क्लास 12 में ही पढ़ाऊंगा। इनके अंदर लेक्चर्स बने हुए हैं मेरे, शायद मुझे लगता है हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर जो सेकंड लेक्चर होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होगा, उसमें निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह डिस्कस किए होंगे। या वायरल इन्फेक्शन में मैंने डिस्कस किया होगा कॉमन कोल्ड को, पर ये क्लास 11 के टॉपिक्स नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड इट एक्चुअली इन्फेक्ट योर लंग्स, पल्मोनरी टीबी में। फिर आप ना एक वो भी रख लेना, सीवियर सांस के बारे में भी पढ़ लेना। तो सांस से पहले मैं तुम्हें डीकम्प्रेशन सिकनेस भी बता देता हूँ, लास्ट वन, ठीक है। डीकम्प्रेशन सिकनेस, जिसको डाइवर सिकनेस भी कहते हैं। अब देखो डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या होता है, जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाओगे और जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे हो, वहाँ पे जो एयर का पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ रहा है। नॉर्मली तो यहाँ पे क्या था कि भाई हमारे पास जो भी वो 78% नाइट्रोजन है उसका पार्शियल प्रेशर, आपके ब्लड का पार्शियल प्रेशर बराबर था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे जाके एयर का पार्शियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस डाइवर को जो आप देते हैं वो कौन सी एयर देते हैं? इट हैज़ बीन गिवन कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर, ठीक है बच्चे। अब जैसे जैसे नीचे जा रहा है एयर का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और ये कंप्रेस्ड एयर है हाई प्रेशर पर। तो ये जो हाई प्रेशर वाली एयर है, जब इसके ब्लड के अंदर, ये इसके लोलाई के अंदर जाएगी। अब ब्लड के अंदर तो प्रेशर नाइट्रोजन का वही है जो था, ये जो एयर ले रहा है कंप्रेस्ड एयर विद हाई प्रेशर, ये ज़्यादा पार्शियल प्रेशर वाली है, तो नाइट्रोजन डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन।
और नाइट्रोजन आगे चल के ब्लड में बॉडी टिश्यूज़ के अंदर भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ब्लड वेसल के अंदर भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इन ब्लड वेसल नाइट्रोजन है और बॉडी टिश्यूज़ भी नाइट्रोजन लेना शुरू कर देते हैं। इस नाइट्रोजन के इकट्ठा होने से जो भी डाइवर है उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, डिजीनेस आनी शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है। अब जो रियल प्रॉब्लम आती है, जो मैं डिकम्प्रेशन सिकनेस की बात करूँगा, ये कुछ और है। ये तो मैंने बताया जब वो डाइवर डीप इनसाइड द सी जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो टैंक है उसमें हाई प्रेशर वाला एयर है, तो कुछ नाइट्रोजन जो है वो चला जाता है और उनके बॉडी के जो टिश्यूज़ है, बॉडी के जो फैट है, ब्लड वेसल, उसके अंदर नाइट्रोजन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो इवेंचुअली पेन कॉज करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। अब दो चीज़ होगी, लेट्स से ये बॉडी टिश्यू है और मच ऑफ द नाइट्रोजन इन द बॉडी टिश्यू, मच ऑफ द नाइट्रोजन किसमें, बॉडी टिश्यू के अंदर है। ये अपनी टॉक्सिसिटी यहाँ पे कर ही रहा था। अब दो चीज़ होगी, अगर इसने बहुत ही रैपिड असेंड किया और दूसरा इसने बहुत ही स्लो असेंड किया। जब नीचे से ऊपर आ रहा है, अगर रैपिड असेंड करेगा तो बहुत जल्दी से प्रेशर फॉल करेगा। रैपिड असेंड करेगा तो देयर वुड बी अ क्विक फॉल इन प्रेशर, और जैसे क्विक फॉल इन प्रेशर होगा तो व्हाट वुड हैपन, नाइट्रोजन गैस वुड बी कमिंग अ लॉट। यहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, नाइट्रोजन वुड बी कमिंग अ लॉट हियर। और जब नाइट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो व्हाट वुड हैपन, देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हियर। और ये जो बबल है ये ब्लॉक कर सकता है पूरे के पूरे सर्कुलेशन को, विच कैन रिजल्ट इन फेंटिंग एज वेल। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी डाइवर डेप्थ से असेंड करे, डेट शुड बी वेरी स्लो, और स्लो आएगा तो जो नाइट्रोजन डिफ्यूज हो रहा है वो नहीं बबल बना पाएगा। नाइट्रोजन जो रैपिड असेंडिंग है और नाइट्रोजन बबल बनते हैं, उसी को बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है बच्चे, ओके। तो देन सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, सास सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखो 2003 में ना एक इन्फ्लुएंजा फैमिली का वायरस, वेरिएंट वायरस मिला था जिसको नाम दिया था कोरोना वायरस। रिलीज तो 2003 में, आइडेंटिफाई तो 2003 में हो गया था, पर सुपरहिट 2020 में आके हुआ है। ठीक है, और इसको लेके शायद ही आपसे सवाल पूछा जाए अभी के लिए तो। हाँ, जब क्लास 12th में तुम वायरल इन्फेक्शन पढ़ोगे तब मैं कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो अभी तो मैं लाइक ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम और अभी वक्त नहीं है इसका। इन 2003 अ न्यू वायरस ऑफ, इट इज़ अ म्यूटेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा फैमिली। और सिम्टम वगैरह ना मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बचा हो जिसको नहीं पता होगा वो क्या प्रिकॉशंस है। उस वक्त तो ये माना जाता था कि जो कॉकरोचेस वगैरह है ये भी इस वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका नॉर्मल, और एक्चुअली 3 ही आपको पढ़ने हैं, एस्थमा, एम्फिसीमा एंड ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। बाकी तो ये सारे जो जितने भी हम पढ़ रहे हैं, देयर इज नो लिमिट। अगर मैं बात करूँ, हे फीवर एक तरह की एलर्जी होती है डस्ट से। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम उसमें भी आ जाती है। प्लूरेसी, प्लूरल इफ्यूजन डिसीज हो गया आपका। ठीक है, देन बाकी सारी कंडीशन। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर। तो आई विश यू वेरी गुड लक। आई गेस आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपने तैयारी की होगी अपनी। क्लास इज ओवर। थैंक यू।